नमस्ते बिटिया। नमस्ते सर। हमेशा खुश रहो बिटिया। थैंक यू सर। A very good morning to you all. Myself, JV Dr. Ravi Jain, Assistant Professor, Department of Practice of Medicine, and Faculty of Homeopathic Science at Jyoti Vidyapith Women's University, Jaipur. In the last lecture, we had discussed about osteoporosis. We had discussed about osteoporosis. What is osteoporosis? What are the etiological factors, clinical features, investigation, and management. So, what is osteoporosis? Reduction of Bone strength, bone density, when it is reduced, it is related to the development of osteoporosis. What is the etiopathogenesis? What are the factors that are responsible for the development of osteoporosis? Anyone? British? Vitamin D, estrogen, calcium. Very good. Calcium what? Excess? Deficiency. So, speak in full. Calcium is responsible for osteoporosis. अरे मैंने तो ज़्यादा खा लिया था. नहीं, calcium deficiency is responsible for the development of osteoporosis. Right, vitamin D deficiency is responsible for development of osteoporosis. Again. Very good. And smoking and certain type of medications that are responsible for the development of osteoporosis. What are the clinical features of osteoporosis? Fracture. Fracture at three important sites. Right. And the other features includes pains at certain other sites, secondary pains, and nerve compression, reduced height because of the compression of body. Any other clinical feature? Fracture leads to restrictive. Very good. Etiological fractures में मेडिकेशन के बारे में आपने एक तो बताया नहीं इम्पोर्टेंट वाला. अरे ड्रग्स बता दिया जो हमने बात करी थी. फिजिकल इनएक्टिविटी. हाँ, रूम में बैठे हुए हो गया ऑस्टियोपोरोसिस. बात की थी ना. So now what are the investigations that can be done in case of osteoporosis? ऐसे नहीं करो बेटा, मैं बोलता कुछ हूँ आपको और आप नहीं मानते. एक्सरसाइज, CBC, सीरम 24 आवर सीरम कैल्शियम. सीरम कोर्टिसोल लेवल आप चेक कर रहे हैं, पैराथॉर्मोन, TSH और रीनल एंड हेपेटिक फंक्शन. अच्छा, नॉर्मल सीरम कैल्शियम लेवल कितना होता है? 20. हाँ, 8 to 10 क्लोज है. This is close. What is normal serum calcium level? Because हमने osteoporosis में डिस्कस किया था कि serum calcium level को मेंटेन करने के लिए resorption bone से होने लग जाता है. तो what is normal calcium level? 9 to 11 units. 8 to 10 बताया था रचिता. यूनिट क्या थी? ग्राम. हीमोग्लोबिन थोड़ी ना पूछ रहे हैं. ग्राम. What is the unit? This is your homework. अरे यार, तो याद करके रखिए. सर होमवर्क इतना सारा दे देते हैं आपको, समझ ही नहीं आती है ना. 9 to 11 मैंने बता दिया, यूनिट आप मुझे बता दो, so that I can know कि आप लोगों ने बुक खोल के देखा था उसको. ठीक है? Normal values we should always remember because कई बार जब आपके पास इन्वेस्टिगेशंस आती है, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स आती है, उसमें रेफरेंसेस नहीं लिखे होते हैं. सो अगर दिया हुआ इट इज गुड, नहीं दिया हुआ तो आपको नॉर्मल के पता होना चाहिए. बेसिक इन्वेस्टिगेशंस की हमें नॉर्मल वैल्यूज पता होनी चाहिए, जैसे T3 T4 TSH होती है ना, बिकॉज दीज आर द पेशेंट्स दैट यू आर गेटिंग रेगुलरली. सो यू शुड नो द बेसिक वैल्यूज, द नॉर्मल वैल्यूज ऑफ न्यू इन्वेस्टिगेशंस दैट यू नॉर्मली एनकाउंटर. जैसे कि हीमोग्लोबिन, तो आप लोगों को हीमोग्लोबिन के पेशेंट्स मिलते हैं तो आपको नॉर्मल रेंज पता होनी चाहिए, मेल्स में कितनी होनी चाहिए, फीमेल्स में. ठीक है? T3 T4 TSH बहुत ज़्यादा मिलता है जब हम बात कर रहे हैं बार-बार की TSH देखो, तो लैब वाले ने टेस्ट कर लिया कि डॉक्टर साहब को आता है कि नहीं आता. सिर्फ TSH की वैल्यू लेके भेज दी, नॉर्मल वैल्यूज तो आपको पता ही होगी, वो भी ऐसे मान के चलते हैं. तो यू शुड नो है ना क्या नॉर्मल वैल्यूज होती है. बेटा यूनिट्स के हिसाब से वेरी करती है. एक यूनिट में एक वैल्यू होती है, दूसरे में दूसरी होती है, तो बोथ द वैल्यूज यू शुड नो. सो दैट वाज ऑल अबाउट और मैनेजमेंट क्या था.
ऑस्टियोपोरोसिस का व्हाट वाज मैनेजमेंट? Vitamin D and Fractures management of the fractures first of all, and vitamin D and Emaciation. all the factors that were responsible for development of osteoporosis we have to treat them accordingly. पहले तो factors ढूंढो, उसको ट्रीटमेंट करो, उसको हटाओ. अगर ड्रग्स हो रही हैं तो ड्रग्स को चेंज करो. अगर ज़्यादा रेस्ट कर रहे हैं तो एक्सरसाइज करेंगे. एकदम ऐसा लगता है कि थक गए सर, क्लास चालू होकर थक गए. ऐसे होता है कि सर आज तो कॉलेज जाना, थक गए. कल संडे है, tomorrow is Sunday and you all will be very active. खूब पार्टी है. Now, कल संडे है, सुनाने को इतना से शॉप है. कोई बात नहीं, अच्छे से नींद निकालो. Now coming back to our topic, so that was all about osteoporosis. Now we will start with systemic sclerosis. This is yet another important disease of locomotor system. इसमें mostly आप लोगों को शॉर्ट नोट आएगा और हो सकता ना भी आए, but still this is important because this is a disease that can be diagnosed on spot. आप देखकर ही उसे diagnose कर सकते हो, and this is having lot of clinical manifestations. इसके इफेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं. सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस से समझते क्या है? स्क्लेरोसिस मतलब क्या है? व्हाट इज स्क्लेरोसिस? हार्डनिंग, थिकनिंग और हार्डनिंग ऑफ द टिश्यू. तो यहाँ पे जो आपकी बोन्स होती हैं ये आपकी स्किन को भी अफेक्ट. दिस इज अ डिजीज दैट कैन हैव मेनी मैनिफेस्टेशंस. इट कैन अफेक्ट योर स्किन एज वेल एज इंटरनल ऑर्गन्स. तो करता क्या है यहाँ पे, होता क्या है? देयर इज डिपॉजिशन ऑफ कोलेजन. कोलेजन डिपॉजिशन होता है यहाँ पे. फाइब्रोसिस हो जाता है. फाइब्रोसिस आपका स्किन का और आपके जो इंटरनल ऑर्गन से कहीं पर भी फाइब्रोसिस हो सकता है. फाइब्रोसिस के साथ में हार्डनिंग हो जाती है. ठीक है. दिस कैन इवन अफेक्ट योर ब्लड वेसल्स. तो बेसिकली होगा क्या यहाँ पे? सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस में वी विल फाइंड हार्डनिंग एंड थिकनिंग. ठीक है. स्किन की हार्डनिंग होगी, थिकनिंग होगी. जहाँ पर भी जो भी आपके सॉफ्ट टिश्यूज हैं वो हार्ड हो जाएंगे. ठीक है. ब्लड वेसल्स पे इफेक्ट करेगा. यहाँ पे जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं वो अफेक्ट करते हैं ब्लड सेल्स को. ठीक है. ब्लड सेल्स को उसमें इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स डेवलप करते हैं. उसके वजह से इसमें से आपका ब्लीडिंग होने लग जाती है. माइक्रोवेस्कुलर रप्चर होता है, फाइब्रोब्लास्ट का एक्टिवेशन होता है और कोलेजन टाइप 1 बनता है. तो ये मैकेनिज्म हम पढ़ेंगे. एक बार थोड़ा सा समझ लो क्या क्या चीज़ें होती हैं. तो बेसिकली ब्लड वेसल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है. इनमें इंजरी हो रही है. टी लिम्फोसाइट्स से टी लिम्फोसाइट्स अफेक्ट कर रहे हैं. इम्यूनोलॉजिकल प्रोसेस है. बेसिकली इम्यूनोलॉजिकल प्रोसेस है. सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस इज बेस्ड ऑन इम्यूनोलॉजिकल प्रोसेस. जहाँ पर आपके जो टी लिम्फोसाइट्स हैं, बेटा एक बार सुन ले फिर लिख लेना है ना. सब कुछ मैं रिपीट नहीं करूँगा. आई विल रिपीट अगेन दीज थिंग्स. अभी लिखोगे तो कुछ समझ नहीं पाओगे. सब इम्पोर्टेंट है. सारी पीपीटी देती है और क्या करें. इफ यू विल ओपन योर पोर्टल jbw.in, आप लोगों ने तो डाउनलोड करके मुझे भेज दिया बेटा सब कुछ. तो आई बिलीव यू ऑल हैव ऑल दीज पीपीटीज विद यू. सारे लिंक्स आपके पास हैं. ये जो क्लास रिकॉर्ड हो रही है इसका लिंक आपको कल तक मिल जाएगा. सो यू विल हैव ऑल द लिंक्स. आपके पास में ऑलरेडी पीपीटीज हैं. बस इंपॉर्टेंस क्या देनी है कि हम समझ लें. लिखा हुआ तो बुक में भी है. जो नहीं आ रहे वो बुक में से भी पढ़ेंगे ही सही ना. पास तो सभी को होना है. तो जब आए हो तो एटलीस्ट आप लोग उनसे ज़्यादा थोड़े से एडवांस हो कि हमें समझ आ गया. तो सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस, यहाँ पे टी लिम्फोसाइट्स का इन्फ्लेमेशन इन्फिल्ट्रेशन हुआ, जो माइक्रोवेस्कुलर रप्चर हुआ, आपके जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें उसकी वजह से माइक्रो हेमरेजेस हुए, तो फाइब्रोब्लास्ट का एक्टिवेशन हुआ. उसके साथ में टाइप 1 कोलेजन. डिटेल में है बहुत ज़्यादा, पर आपको 3-4 टर्मिनोलॉजी है जो याद रखनी है ना. होते हैं ना कुछ कट पीसेस होते हैं जिनको हम दे मारते हैं एग्जाम में. ठीक है. अगर आपने गाउट पूछा तो हमें टोफाई लिखना है. दैट मीन्स वी नो गाउट. ऑस्टियोआर्थराइटिस पूछा तो हमें ऑस्टियोफाइट्स लिखना है. तो सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस पूछा तो हमें 4 वर्ड्स लिखने हैं जिनको लिखने से एग्जामिनर समझ जाएगा कि हमें सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस के बारे में आता है. ठीक है. वी नो अ लॉट अबाउट सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस. टी सेल्स, टी लिम्फोसाइट्स का इन्फिल्ट्रेशन. ठीक है. माइक्रोवेस्कुलर रप्चर हुआ, फाइब्रोब्लास्ट का एक्टिवेशन हुआ और कोलेजन फाइब्रोस. ठीक है. तो उसकी वजह से कोलेजन फाइबर्स क्या करते हैं? थिकनिंग और हार्डनिंग ऑफ द स्किन करते हैं. जहाँ पर भी कोलेजन डिपॉजिट होगा वो बेसिकली फाइब्रोसिस कर देगा. फाइब्रोसिस से क्या होता है? थिकनिंग और हार्डनिंग. अब ये जो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस होगा, दिस इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस, ये जो आपके ब्लड वेसल्स को यूजुअली अफेक्ट करेगा. तो इन्फ्लेमेशन अगर ब्लड वेसल्स में होगा
तो उसका उसका जो ल्यूमेन होता है ना, जो ब्लड वेसल्स का ल्यूमेन होता है वो नैरो हो जाएगा। तो दैट विल अगेन ल्यूमेन नैरो होने की वजह से और ज़्यादा आपके फाइब्रोब्लास्ट की एक्टिविटी बढ़ जाएगी। ठीक है, हार्ड अगर ल्यूमेन कम होगा, अगर आपका ब्लड वेसल्स में जगह कम मिलेगी तो ब्लड को ज़्यादा फोर्स के साथ भेजना पड़ेगा, क्योंकि आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करनी है। तो उसके वजह से अगर ब्लड तेज़ी से जाएगा, हार्ट को ज़्यादा पंप करना पड़ेगा, तो सिम्टम्स कौन से आएंगे? हाइपरटेंशन। तो सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस के अंदर आपको हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा। ठीक है, किडनी फंक्शंस आपके धीरे धीरे डिस्टर्ब होते जाएंगे। हार्डनिंग होगी, आपका कोई भी स्ट्रक्चर हार्ड हो सकता है। अगर हाथ में हुआ तो सिस्टेमिक आपकी जो स्किन है बिल्कुल हार्ड हो जाएगी। ऐसे एक कंडीशन होती है जिसको बोलते हैं स्क्लेरोडेक्टिली। स्क्लेरो मतलब हार्डनिंग है ना, स्क्लेरोसिस ऑफ, और डेक्टिली मतलब फिंगर्स। तो यहाँ पे जो इंडिविजुअल अपन ऐसे हाथ ऐसे मूव कर सकते हैं ना, सो वी कैन मूव आवर फिंगर्स लाइक दिस। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो फिंगर्स हैं हार्डनेस, यहाँ पे जो स्किन है हार्ड हो जाएगी, इसकी वजह से फिंगर्स ऐसे हो जाएगी, क्लॉ हैंड हो जाएगा। सो दैट इज नोन एज स्क्लेरोडेक्टिली। ठीक है, फाइब्रोसिस हुआ, स्क्लेरोसिस हुआ, तो उसकी वजह से फिंगर्स आपकी टर्न हो गई, दैट टर्म इज नोन एज स्क्लेरोडेक्टिली। ये चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, है ना। आपके जो ब्लड वेसल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाएंगे कई जगह पे। तो जैसे ओल्ड एज में आप कई बार देखते हैं नसें दिखती है ना, आंखों के ऊपर, बाहों के ऊपर कई लोगों की जो नसें दिखती हैं, दैट इज नोन एज टेलेंजेक्टेशियाज। टेलेंजेक्टेशिया जिसमें कि आपको ब्लड वेसल्स डायलेटेड दिखते हैं, वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो मल्टीपल सिस्टम्स अफेक्ट होते जाएंगे। अगर आपकी जो जीआई ट्रैक्ट है वहाँ पे अगर स्क्लेरोसिस हो जाएगा, फाइब्रोसिस हो जाएगा, तो इंटेस्टाइन में सपोज हो गया, तो क्या सिम्टम्स मिलेंगे आपको? थिकनिंग हो गया, हार्डनिंग हो गया, तो इंटेस्टाइनल मोटिलिटी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। दैट बिकॉज आपके जितने भी ऑर्गन्स हैं, दीज आर प्लास्टिक ऑर्गन्स, इसमें इलास्टिसिटी होती है। तो अगर वहाँ पे थिकनिंग हो जाएगी, उसमें हार्डनिंग हो जाएगी, तो जहाँ पर भी आपका स्क्लेरोसिस हो रहा है वहाँ पर उसकी एक्टिविटी आपकी कम हो जाएगी। हार्ट में अगर हो जाएगी तो पेरिकार्डाइटिस और बाकी के सिम्टम्स हार्ट में आने लग जाएंगे। तो जो भी ऑर्गन इन्वॉल्व होगा, जो भी सिस्टम इन्वॉल्व होगा, वहाँ पे हार्डनेस होने लग जाएगी, वहाँ पे थिकनिंग होने लग जाएगी। ठीक है, बिकॉज ये जो भी रप्चर हो रहा है, जो भी चीज़ें हो रही है, और यहाँ पे आपके कैल्शियम आयंस का भी इंपॉर्टेंट रोल रहता है। ठीक है, तो इसके मैनेजमेंट में आप देखोगे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स की हम बात करेंगे। ठीक है, कहीं और हो गई तो ध्यान रखो। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती है आपको नहीं पता। Now, what is this? Is these are the features of systemic sclerosis. एक रेनॉल्ड्स phenomenon होता है। What is रेनॉल्ड्स phenomenon? रेडनेस नहीं होती बेटा यहाँ पे, ब्लूनेस। तो ऑक्सीजन की सप्लाई पेरिफेरली में कम हो जाती है, जिसके वजह से वाइटिश डिस्कलरेशन हो जाता है। जो फिंगर्स, जो आपके टर्मिनल फेलेंजेस होती है ना, तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है कि आपके जो ब्लड वेसल्स इन्फ्लेम्ड हो रहे हैं, उनका ल्यूमेन नैरो हो गया है, तो जो पेरिफेरीज है वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं जा पाता, जिसकी वजह से वो पेल हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं। दैट इज नोन एज रेनॉल्ड्स फिनोमेनन। तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं इस डिजीज की, सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस की, तो यहाँ पे जो मेजर एक्शन होता है वो आपके ब्लड वेसल्स के ऊपर होता है, और उसी वजह से सारे के सारे चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें अल्टीमेटली आपका फाइब्रोसिस होता है, हार्डनिंग हो जाती है टिश्यू की, थिकनिंग हो जाती है, एंड देयर इज रिड्यूस्ड मोबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर टिश्यू जहाँ पर टेलेंजेक्टेशियाज होते हैं, जो ब्लड वेसल्स आपको विजिबल दिखते हैं। ठीक है, और नेम कैपिलर्स को ये ऐसा हाथ हो जाएगा, दिख रहा है आपको? इसको क्या बोला हमने? इसको दिस इज आल्सो नोन एज द क्लॉ हैंड। ऐसा देखा किसी ने ओल्ड एज में? These diseases are common in old age, स्पेशली यूजुअली बोला गया इसको 4th and 5th डिकेड में ज़्यादा होते हैं। 4th डिकेड कहाँ से कहाँ तक होता है? 31 to 40, 50 to 60 कौन बोला? 31 to 40। किसने बोला? वही तो बोला। उधर सर हम तो जानते ही नहीं है। ये कौन सा डिकेड? ये जो डिकेड होगा उस पे खत्म हो जाएगा। फर्स्ट 10 पे खत्म हो जाएगा, सेकंड 20 पे खत्म हो जाएगा, थर्ड 30 पे खत्म हो जाएगा, फोर्थ 40 पे खत्म हो जाएगा, फिर 40। तो दिस डिजीज इज मोर कॉमन इन 4th and 5th एज। जब भी कंफ्यूजन लगे ना तो लिख के देखो।
0 to 10 first, 10 to 20, 11 to 20 second. इस तरह से. Now, this is basically an autoimmune disease. Okay? Autoimmune disease in which the cells are developed against our own inflammatory cells or the immune cells. These are fighting their own body. So, autoimmune rheumatic disease that is characterized by excessive production and accumulation of collagen. So, बहुत ज़्यादा कोलेजन बन रहा है, बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो रहा है, जिसकी वजह से स्किन हार्ड हो रही है, जो टिश्यू है हार्ड हो रहा है और उसमें थिकनिंग हो रही है. ठीक है. Excessive production and accumulation of the collagen that is known as fibrosis. So this is an important term, fibrosis, collagen in terms में हमें याद है. मतलब सब बता देंगे सर, डेफिनेशन नहीं बताएंगे. मुझे तो डेफिनेशन चाहिए, है ना. कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन याद कर ली थी. कितने लोगों ने याद करी? पढ़ा था सर. In the skin and internal organs, the injuries. So what is happening? The blood vessels are getting injured. So I have told you that the main site of action is the blood vessels. जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी, जो भी चेंजेस आएंगे, सबसे पहले ब्लड वेसल्स में आएंगे और उसके वजह से सारी की सारी पैथोलॉजिकल चेंजेस आपको इसमें देखने को मिलेंगे. ठीक है. सो इन द स्किन, इंटरनल ऑर्गन एंड बाय इंक्रीज द स्मॉल आर्टरीज. तो फाइब्रोसिस हो रहा है यहाँ पे, अक्यूमुलेशन ऑफ कोलेजन हो रहा है स्किन के अंदर, इंटरनल ऑर्गन्स में और ब्लड वेसल्स में. स्किन में स्क्लेरोडेक्टिली से आपको याद हो जाएगा. इंटरनल ऑर्गन्स में यूजुअली अगर जीआई ट्रैक्ट इन्वॉल्व है, अदर ट्रैक्ट इन्वॉल्व है, तो सॉफ्ट टिश्यूज में वहाँ पे हो जाएगा. और इंजरी टू द स्मॉल आर्टरीज. It is a multi-system disorder because it affects multiple systems at a particular time. जब भी स्क्लेरोसिस होगा, कोलेजन डिपोजिशन होगा, वो कई साइट्स पर होगा, है ना. कई सारे सिस्टम्स को एक साथ इन्वॉल्व करेगा. Therefore, it is said as a multi-system disorder that is characterized by the thickening of the skin, that you know as scleroderma. Sclero means and derma is pertaining to skin. And digestive and distinctive involvement of the multiple internal organs. Which internal organs are chiefly involved? GI tract, lungs, heart and kidney. All of these are vital organs. Alright? So GI tract, lungs, heart and kidneys are involved. Age incidence, it is more common in 4th and 5th decade. 4th decade कहाँ पे खत्म हो जाएगा? 40. 5th decade कहाँ खत्म हो जाएगा? 50. तो अपने आप क्लियर हो गया कौन सा decade है. Male to female ratio है 1:4, so it is more common in females and more common in black as compared to the white. This is the ethnicity. Now pathogenesis. First line बहुत अच्छी लाइन है ना. सबसे अच्छी लाइन है. अगर ऐसा लगता है तो हमें कुछ याद करने की जरूरत नहीं है. This is a very good line to remember. कि exact pathogenesis is unclear, but there are certain genetic associations, especially HLA associated होती है. यहाँ पे HLA locus है, and this involves immunological mechanism. तो जो मैंने mechanism अभी आपको बताया था, that T lymphocytes infiltration leading to the vascular endothelial damage. तो T lymphocytes का infiltration हो रहा है जिसकी वजह से आपका vascular का endothelium, आपके blood vessels में एक endothelium होती है ना, उसका डैमेज हो जाता है. That is causing activation of the fibroblast. तो जब डैमेज हो गया तो ब्लड क्लॉटिंग शुरू हो जाती है. तो जब रप्चर हो जाती है ना आपकी एंटेना, तो उसकी वजह से फिल्ट्रेट स्टार्ट होता है और फाइब्रोब्लास्ट का एक्टिवेशन होता है. फाइब्रोब्लास्ट क्या करते हैं? दे कॉजेस इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स इन द डर्मिस एंड प्राइमरी टाइप 1 कोलेजन. तो ये जो फाइब्रोब्लास्ट हैं, ये आपके एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को क्या करते हैं? उसमें प्रोडक्शन करते हैं टाइप 1 कोलेजन का बहुत सारा. ठीक है. दिस रिजल्ट, इसके वजह से ये जो आपके टाइप 1 कोलेजन का प्रोडक्शन हो रहा है, इसके वजह से आपकी जो स्किन है वो थिक होने लग जाती है. दिस कॉजेस दिस रिजल्ट इन द सिमेट्रिकल थिकनिंग. यूनिफॉर्म थिकनिंग होती है, किसी पर्टिकुलर जगह पे थिकनिंग नहीं होती है. यूनिफॉर्म सिमेट्रिकल थिकनिंग ऑफ द थिकनिंग एंड टाइटनिंग एंड इंड्यूरेशन. व्हाट इज इंड्यूरेशन? हार्डनेस. इसमें पेन भी होता है क्या? नहीं. इंड्यूरेशन नॉट रिलेटेड. ऐसा कुछ है? मुझे कल कंफर्म नहीं पता. देखो, इंड्यूरेशन का मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंड्यूरेशन? आप लोग लिखते क्या हो तो आपको दिखता ही नहीं है घर जाने के बाद में. जहाँ टॉपिक लिखा होता है ना, मानो पहले ना फर्स्ट 2-3 लाइन छोड़ दिया करो, होमवर्क फॉर टुडे, है ना, जो सर आज देने वाले हैं, दैट वी हैव टू
गो एंड सी इन द बुक्स, क्योंकि होता क्या है आप यहाँ से जाते हैं रूम पे जाते हैं, फिर आपको लगता है आज तो अच्छे से समझ आएगी, हमें देखने की क्या जरूरत है। फिर जब एग्जाम टाइम पे आप देखते हो फिर याद आता है तो सर ने पूछा था, हमें तो ये बताया ही नहीं, इस चीज़ को देखी नहीं आज, फिर सोचते तब नहीं बताया तो आप देख के क्या करेंगे। इतना बस थिकनिंग, देयर इज टाइटनिंग एंड इंड्यूरेशन ऑफ द स्किन, देयर इज आर्टेरियल एंड आर्टेरियोलर नैरोइंग। तो आपकी जो आर्टरीज होती है देयर इज नैरोइंग इन दोस आर्टरीज, ठीक है। तो आपका जो ल्यूमेन होता है, द ल्यूमेन ऑफ द ब्लड वेसल्स इज रिड्यूस्ड। दिस अकर्स ड्यू टू इंटीग्रल प्रोलिफरेशन एंड द वेसल वॉल इन्फ्लेमेशन। तो जो ब्लड वेसल्स हैं उनका इन्फ्लेमेशन हो जाता है और उनका ल्यूमेन नैरो हो जाता है, ठीक है। स्वेलिंग आ गई, तो स्वेलिंग आने की वजह से वो पूरी वॉल में स्वेलिंग आती है, वॉल में स्वेलिंग आने की वजह से उसका ल्यूमेन नैरो हो जाता है। And this endothelial injury, this is all the pathophysiology that is going on. जो भी पैथोजेनेसिस में चेंजेस आते हैं ना, एग्जैक्ट तो क्लियर ही नहीं है, लेकिन फिर भी हमें जो चेंजेस समझ आएंगे वो हम बता रहे हैं। तो endothelial injury causes release of vasoconstrictors। तो vasoconstriction होने की वजह से रेनॉल्ड्स फिनोमेनन डेवलप हुआ था। जो आपने रेनॉल्ड्स फिनोमेनन देखा था ना, जहाँ पे ब्लड वेसल जब ब्लड फ्लो नहीं जा पा रहा था, और उसका जो कॉज था दैट वाज वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन। साथ में वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन होने की वजह से किडनी भी अफेक्टेड होगी, ब्लड भी, आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा, दैट इज लीडिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। तो सारे जो सिम्टम्स यहाँ पे आ रहे हैं, सारे जो क्लिनिकल फीचर्स हम पढ़ेंगे, उसका मेन कॉज वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा, प्लेटलेट्स का एक्टिवेशन हो जाएगा, ठीक है। वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर एंड प्लेटलेट एक्टिवेशन व्हिच रिजल्ट इन फर्दर इस्चेमिया, इसकी वजह से और ज्यादा इस्चेमिया। व्हाट इज इस्चेमिया? There are few terms: ischemia, infarction, and gangrene. So, what is ischemia? Ischemia and infarction. There are two terms. इन दोनों का पता लीजिए। ischemia में क्या होता है? एक जना नाम बेटा पूछो। और हाँ बेटा बोलो। इनका इस्चेमिया, ठीक है, ये तो ऑब्स्ट्रक्शन हो गया। और ऑक्सीजन का प्रॉब्लम होता है, ऑक्सीजन इस्चेमिया ऑक्सीजन बैच होता है। इस्चेमिया किस वजह से होता है? हाइपोक्सिया मान लिया बेटा, हाइपोक्सिया क्यों होगा? किस वजह से? नहीं, नो, इस्चेमिया किस वजह से होगा? ऑक्सीजन कैसे जा रही है? उड़ के जा रही है? वेरी गुड, बिकॉज ऑफ रिड्यूस्ड ब्लड सप्लाई, ब्लड कम जाएगा तो ऑक्सीजन कम जाएगी और उस वजह से इस्चेमिया होगा। ऑक्सीजन तो बता दिया आपने, दैट वाज करेक्ट, लेकिन ऑक्सीजन जा कैसे रही है? ब्लड के थ्रू जा रही है। तो क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है, लेकिन ब्लड सप्लाई कम हो गई, जिस वजह से आपका डिक्रीज ऑक्सीजन है, इस वजह से इस्चेमिया डेवलप हो रहा है ना। यहाँ पे वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन हो गया, वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन होने की वजह से नैरो स्पेस हो गई है, ब्लड प्रॉपर्ली जा नहीं पा रहा, जिस वजह से आपके जो स्ट्रक्चर्स हैं, बॉडी ऑर्गन्स हैं, मार्कर ऑक्सीजन प्रॉपर्ली, ब्लड नहीं पहुंचा तो ऑक्सीजन नहीं पहुंची, तो इस वजह से इस्चेमिया होता है। इस्चेमिया अगर बढ़ता गया तो फिर वो इंफार्क्ट है। इंफार्क्ट इज बेसिकली फोकल सेल डेथ, है ना, जिसमें कि आपकी सेल की डेथ हो जाती है। पहले तो इस्चेमिया में गया, ठीक है, और उसके मर गया, आपके ऊपर तकिया रख दिया गया, पहले तो सांस के लिए तड़प हो गया और उसके बाद में खत्म। तो पहले इस्चेमिया के बाद में इंफार्क्ट। ऐसे ही हमारे सेल्स होते हैं, ऑक्सीजन जाती रही, अच्छी बात है, काम करते रहेंगे। हाँ, एंडोथेलियल जो हो गया हमारा, एंडोथेलियल इंजरी दैट कॉजेस रिलीज ऑफ वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर्स एंड प्लेटलेट एक्टिवेशन। इसकी वजह से प्लेटलेट एक्टिवेशन हुआ व्हिच रिजल्ट्स इन फर्दर इस्चेमिया। इसकी वजह से और ज्यादा इस्चेमिया होता है, धीरे धीरे वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन हो गया, प्लेटलेट का एक्टिवेशन हो गया, तो और ज्यादा रोकेंगे, नहीं हम नहीं जाने देंगे आपको ब्लड, ऑक्सीजन नहीं पहुंचने देंगे, चाहे कुछ भी करो, तो उसके वजह से ये एक्सेसरेट द फाइब्रोटिक प्रोसेस। तो अल्टीमेटली होगी क्या? फाइब्रोसिस, कोलेजन डिपोजिशन होने की वजह से फाइब्रोसिस होने लग जाएगा स्किन का, और वो हार्ड हो जाएगा, ठीक है। नाउ क्रिटिकल फीचर्स, क्रिटिकल फीचर्स जो भी सिस्टम इन्वॉल्व है उनके अकॉर्डिंग क्रिटिकल फीचर्स आते हैं। बहुत सिंपल क्रिटिकल फीचर्स हैं, जहां पर भी आपको उसका अफेक्शन दिखाना है। ऑर्गन्स हमने पकड़ लिए थे, स्किन और जीआईटी और हार्ट और किडनी, बस उसी के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस हैं, खत्म। इतना सिंपल है ना। मतलब
स्किन में क्यूटेनियस चेंजेस क्या क्या देखने को मिल रहा है आपको? एडिमा फॉलोड बाय फाइब्रोसिस, पहले स्वेलिंग हो जाएगी फिर फाइब्रोसिस हो जाएगा ऑफ द स्किन, ठीक है। ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ? चीफली एक्सट्रीमिटीज, फेस एंड आर्म्स। तो एक्सट्रीमिटीज में आपको देखने को मिलता है फेस पे देखेंगे, फेस पे टेलेंजेक्टेशियास वगैरह मिलते हैं, कान पे आपको देखने को मिलता है टेलेंजेक्टेशियास हो जाते हैं। कैल्शियमोसिस इज बेसिकली एक्सेसिव कैल्शियम डिपॉजिशन, है ना। रेनॉल्ड्स फिनोमेनन यू ऑलरेडी नो, रेनॉल्ड्स फिनोमेनन क्या होता है। Then arthralgias, you can also see arthralgias in the joint that causes morning stiffness, क्योंकि आपने देखा ना लो हैंड कैसा हो गया, तो उसकी वजह से जॉइंट पेन होने लग जाता है ना। जैसे जैसे फाइब्रोसिस होता है, जहाँ पर भी फाइब्रोसिस होगा तो फिर आपके जो हैंड्स है, आपके जॉइंट्स है, वहाँ पर पेन रहेगा एंड दैट विल प्रोड्यूस मॉर्निंग स्टिफनेस, सुबह सुबह की स्टिफनेस रहेगी एंड फ्लेक्सर टेनोसाइनोवाइटिस। पढ़ा था ना ऐसे। ट्रिगर फिंगर कौन सी डिजीज? चेंजेस अभी पढ़ा है, भूल गए। कितने से नहीं डिफॉर्मिटीज किसमें पढ़ी थी हमने? तो फिर ऑस्टियो की तो बात ही नहीं आ रही, इसका मतलब आपने पढ़ा ही नहीं, भूल गए सर, कोई बात नहीं। ज्यादा पढ़ोगे तो ज्यादा चीजें याद रहेंगी ना, बार बार पढ़ते रहेंगे, ठीक है। सर आप तो पता नहीं कौन कौन सी बुक्स के लिए बोलते हैं, वहाँ टाइम नहीं बचता। हम तो कल पूरे टाइम एलेक्स एनसाइक्लोपीडिया पढ़ रहे थे, रात भर जाग के ना धीरे मेडिका थ्योरा पढ़ रहे थे। एनसाइक्लोपीडिया मिली आपको? एलेक्स एनसाइक्लोपीडिया है लाइब्रेरी में, बोलो चाहिए है? कितने वॉल्यूम में? वो भी 12 वॉल्यूम्स में है, देखना उस पे साइड में लिखा रहता है, ऐसे बुक सभी रहती है तो साइड में आपका नंबर लिखा रहता है 1 2 3 4 5 6। सर वो सारी रेंज नहीं रखी है, बस आपकी सारी बुक्स हैं वो रखी है, जहां कॉम्पिटिटिव बुक्स रखी हैं उसमें। जीआई में आपका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम जो है, वहाँ पे अगर फाइब्रोसिस हो जाता है, वहाँ पे आपका स्क्लेरोसिस हो जाता है, तो बता दिया हमने तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी आपकी कम हो जाएगी ना, दैट विल रिड्यूस। हाइपोमोटिलिटी, रिड्यूस्ड इसोफेजियल, जहाँ पर भी आपका मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो भी इन्वॉल्व हो रहा है, उसका फाइब्रोसिस हो गया तो वहाँ पर इसकी एक्टिविटी कम हो जाएगी। इसोफेजियल हाइपोमोटिलिटी, इंटेस्टाइनल हाइपोफंक्शन, जो पार्ट इन्वॉल्व है वो ठीक से नहीं काम कर पाएगा। आप करना चाहते हो, आपको रस्सी से बांध दिया, अब भागो, कैसे भाग पाओगे? फाइब्रोसिस हो गया, वहाँ पे हार्डनिंग हो गई, तो नहीं कर सकते। गैस्ट्रिक एंट्रल वेस्कुलर एक्टेशन, ये डिजीज होती है, वो भी इससे रिलेटेड होती है, उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा। पल्मोनरी इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, इसकी हमने बात करी थी, थोड़ा सा मैंने आप लोगों को बात की, 2 सिम्टम्स में बताया था आप लोगों ने। ILD कौन सी डिजीज के साथ बात की थी? इंटरस्टिशियल लंग डिजीज। अभी करिए बेटा, कुछ दिन करिए। आप कौन हो सर? इंटरस्टिशियल लंग डिजीज की बात की थी हमने। यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका लंग्स जो है, लंग स्ट्रक्चर दैट इज बिकमिंग फाइब्रोज एंड हार्ड। और वेरी गुड। तो बेटा थोड़े दिनों में आप मुझे यही बोलोगे सर आप कौन हो, पहचान नहीं आए, बिकॉज आपको पूछ रहे हो हमसे कि कहाँ पर। वेरी गुड। पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन समझ आ गया कि वहाँ बेटा नैरोइंग ऑफ द वेसल्स है ना, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन है, नैरोइंग हो रही है तो वो हाइपरटेंशन होता है। हार्ट के इन्वॉल्वमेंट, लंग्स के इन्वॉल्वमेंट की वजह से पल्मोनरी हाइपरटेंशन होता है, क्योंकि वहाँ पे आपकी जो लंग्स है प्रॉपर्ली एक्सपैंड नहीं कर पाते, तो बैक प्रेशर पड़ने की वजह से कौन सा पार्ट हार्ट का जो ब्लड सर्कुलेट करता है लंग्स में? हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं, 4 होते हैं, 4 होते हैं। तो कौन सा चैम्बर ब्लड को पंप करता है लंग्स में? राइट करता है कि लेफ्ट करता है? लेफ्ट करता है ना, राइट करता है। लेफ्ट तो पूरी बॉडी में देते, तो फिर लेफ्ट की बात ही क्यों आ रही है बेटा? लेफ्ट क्यों बोल रहे हो? राइट हार्ट पंप्स ब्लड टू द लंग्स। तो ये जो पल्मोनरी हाइपरटेंशन होता है बेसिकली होता क्या है? बैक फ्लो बिकॉज लंग्स में प्रॉपर नहीं वो एक्सपेंड कर पाते, तो प्रेशर रेज हो जाता है पहले राइट वेंट्रिकल में, फिर राइट एट्रियम में, तो वो इस तरह से पल्मोनरी हाइपरटेंशन, एल्वियोलाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द एल्वियोलाइटिस। ओके, लंग ये चाहिए। नाउ कार्डियक मैनिफेस्टेशंस, हमने चेंजेस देखे आपके स्किन के अंदर, जीआई के अंदर, पल्मोनरी लंग्स के अंदर। नाउ वी कम टू द कार्डियक चेंजेस, कार्डियक मैनिफेस्टेशंस।
हार्ट में भी अगर कुछ हार्डनेस हो जाएगी, पेरिकार्डाइटिस, ठीक है, कार्डियोमायोपैथीज, डिफरेंट डिजीजेस ऑफ द हार्ट, कंडक्शन एब्नॉर्मलिटीज हो सकती है, क्योंकि मस्कुलर स्ट्रक्चर है हार्ट, है ना, अगर उसमें फाइब्रोसिस हो जाएगा तो प्रॉपर कंडक्शन नहीं हो सकता। जो कंडक्शन होता है उसका चैनल पता है आपको कहाँ से स्टार्ट होती है नर्व इम्पल्स? ऐसे नोड, तो ऐसे नोड से एबी नोड, फिर सीधा परकिंजी तक पूछ जाएंगे, बंडल ऑफ फेस, इसके बाद so these are the cardiac changes. Next, in the renal we have hypertension and renal crisis or the renal failure. Pause करें.